Hello students, I hope you all are fit and fine with good condition of health. Today in this video I'm gonna explain the fourth part of Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, chapter 4, Honeydew for class 8. So let's get started. Part 4. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. अगली सुबह रांची में ट्रेन से उतरकर उनको ऐसा लगा कि वो कभी इससे पहले यहाँ नहीं आए हैं. He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. स्टेशन से बाहर आए, टैक्सी ली और थोड़ी देर तक टाउन में चारों तरफ घूमे. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Moradabadi Hill, with none of these had he the slightest acquaintance. उनको ऐसा लगा कि गलियाँ, बिल्डिंग, होटल, बाज़ार और मोराबादी हिल इन सब में से किसी के बारे में भी उनको थोड़ा सा भी जानकारी नहीं है. Would a trip to Hudru Falls help? क्या हुड्रू फॉल जाने से उनको हेल्प मिलेगी? He didn't believe so. उनको नहीं लगता था कि इससे कुछ हेल्प मिलेगी. But at the same time he didn't wish to live with the feeling that he hadn't tried enough. लेकिन साथ ही साथ वो ये भी नहीं चाहते थे कि वो इस फीलिंग और इस सोच के साथ चले जाएं कि उन्होंने अच्छी तरह कोशिश नहीं की. So he arranged for a car and left for Hudru in the afternoon. इसलिए उन्होंने एक कार बुक की और दोपहर में हुड्रू की तरफ चल पड़े. At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. हुड्रू के अंदर उसी दोपहर में 5 बजे पिकनिक पर आने वाले ग्रुप में से दो शरीफ आदमियों ने बिपिन बाबू को एक गोल से पत्थर के पास बेहोश पड़ा हुआ पाया. When he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I'm finished." जब उनको होश आया, came round होश आना, तो पहली चीज़ जो बिपिन बाबू ने कही वो ये थी कि मैं तो गया. There is no hope left. अब कोई उम्मीद नहीं है. Next morning Bipin Babu was back in Calcutta. अगली सुबह बिपिन बाबू वापस कलकत्ता आ गए. He realized that there was truly no hope for him. उनको लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं है. Soon he would lose everything. बहुत जल्द वो हर चीज़ खो देंगे. His will to work, अपने काम की चाहत. His confidence, अपना भरोसा और confidence. His ability, अपना talent. His balance of mind, और अपने माइंड का बैलेंस, सब कुछ वो खो देंगे. Was he going to end up in the asylum at? क्या उनका अंत एक पागल खाने में होने वाला है? बिपिन बाबू couldn't think anymore. बिपिन बाबू को कुछ समझ नहीं आ रहा था. Back home he rang up Dr. Chanda and asked him to come over. घर वापस आकर के उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और उनसे घर आने के लिए कहा. Then after a shower he got into bed with an ice bag clapped on his head. फिर नहाने के बाद वो अपने सर पर एक बर्फ़ का थैला रख करके बिस्तर पे घुस गए. Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. तभी नौकर एक खत लेकर के आया, पत्र लेकर के आया जो किसी ने लेटर बॉक्स में रख दिया था. A greenish envelope with his name in red ink on it. एक ग्रीन कलर का इन्वेलप था जिस पर रेड पेन से उनका नाम लिखा हुआ था. Here is the servant giving a letter to Bipin Chaudhary which was left by some unknown personality in letter box. Above the name it said urgent and confidential. नाम के ऊपर लिखा हुआ था कि ये लेटर बहुत अर्जेंट और ज़रूरी है और गुप्त और सीक्रेट भी है. In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. अपनी बुरी सिचुएशन, बुरी हालत के बावजूद बिपिन बाबू को लगा कि उनको ये लेटर पूरा पढ़ना चाहिए. He tore open the envelope and took out the letter.
उन्होंने इन्वेलप फाड़ा और लेटर बाहर निकाला। दिस इज़ वॉट ही रेड। उसमें लिखा हुआ था, डियर बिपिन, प्यारे बिपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. मुझे पता नहीं था कि धन दौलत की वजह से तुम्हारे अंदर इतनी चेंजिंग आ जाएगी जो आई है। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? क्या तुम्हारे लिए अपने एक पुराने अभागी दोस्त की हेल्प करना इतना मुश्किल था? Down on his luck means बदकिस्मत, अभागी। I have no money, so my resources are limited. मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मेरे रिसोर्सेस, मेरा साधन ये बहुत कम है और मेरा सहारा कोई नहीं है। What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfailing behavior. मेरे पास जो है वो मेरी अपनी कल्पना है और इमेजिनेशन है, तसव्वुर है, जिसका एक हिस्सा, एक भाग मैंने तुम्हारे बुरे बर्ताव, बुरे बिहेवियर की सज़ा देने के लिए यूज़ किया। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। अच्छा, अब तुम ठीक हो जाओगे। ए नावल I've written is being considered by a publisher. एक नावल मैंने लिखी है जिसे एक पब्लिशर, एक प्रेस वाला कंसीडर कर रहा है, देख और समझ रहा है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, अगर उसे ये पसंद आ गई, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो ये मेरे पास कुछ ही महीने में आ जाएगी। योर्स चुन्नीलाल, तुम्हारा प्यारा चुन्नीलाल। ये उस लेटर में लिखा हुआ था। एक्चुअली बिपिन बाबू वॉज चीटेड बाय चुन्नीलाल। चुन्नीलाल ने बिपिन चौधरी को एक ज़बरदस्त चूना लगाया। वो बिपिन चौधरी का एक पुराना दोस्त था, उसके बुरी सिचुएशन हो गई थी, उसका टाइम बुरा चल रहा था, जॉबलेस हो गया था। जॉब के लिए, पैसे के लिए बार बार वो बिपिन चौधरी के पास जाता था कि कोई जॉब दिलाओ या पैसा दो, लेकिन बिपिन चौधरी अपने हाई पोस्ट पर होने के बावजूद भी उसके लिए कुछ करने से इनकार कर देता था और बार बार यही कहते था, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू डू समथिंग फॉर यू। मेरे लिए, तुम्हारे लिए कुछ करना बहुत नामुमकिन है। तो इसलिए बिपिन चौधरी को चूना लगाने के लिए, उसको अपनी औकात याद दिलाने के लिए चुन्नीलाल ने एक ज़बरदस्त स्टोरी क्रिएट की। उसमें पैरिमल घोष और दिनेश मुखर्जी को एक ज़बरदस्त कैरेक्टर दिया और उनसे वही करवाया जो वो चाहता था, और चुन्नीलाल ने ज़बरदस्त झटका दिया बिपिन चौधरी को, और बिपिन चौधरी को अपनी औकात याद आ गई। When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I'm fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. जब बिपिन चौधरी को सारी रियलिटी पता चल गई कि चुन्नीलाल ने उनके साथ बहुत ज़बरदस्त चीटिंग की है, चूना लगाया है, तो अपने साथ हुई चीटिंग को और चुन्नीलाल के चूने को छुपाने के लिए उन्होंने डॉक्टर चंदा से कहा कि तुम्हारा आइडिया सही था कि रांची जाने की वजह से मुझे सब कुछ याद आ गया। आई एम फाइन, मैं अब ठीक हो गया हूँ। इट ऑल केम बैक, ये सब के सब क्या है, मेरी याददाश्त वापस आ गई जैसे ही मैं रांची में ट्रेन से उतरा। ए यूनिक केस, सेड डॉक्टर चंदा। डॉक्टर चंदा ने कहा कि ज़बरदस्त केस है तुम्हारा। आई शैल सडनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल। मैं इसके बारे में एक मेडिकल डायरी बुक में ज़रूर लिखूँगा। The reason why I sent for you, said Bipin Babu, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. अब अपनी बात को छुपाने के लिए बिपिन बाबू ने एक और बात कही कि मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ कि जब मैं रांची गया था तुम्हारे कहने की वजह से, तो वहाँ गिर गया था, मेरे कूल्हे में चोट आ गई है और दर्द है। तुम मुझे एक
पेन किलर दे दो यानी दर्द को दूर करने वाली दवा दे दो. Okay, students, so this was the explanation of the fourth part of Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, the fourth chapter of Honeydew for class 8. I hope you got it, enjoyed it, keep it up, the goal is ahead of you.